Hi dear students, welcome to Excellence Classes, a way of success with me Rupesh. I hope you all are doing well and enjoying my lectures. दोस्तों कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि आप हिंदी में भी समझाने का समझाइए, इंग्लिश में थोड़ा बाउंस करता है, तो मैंने सोचा कि आज से कुछ हिंदी में भी समझाने का प्रयास किया जाए जो कि उन लोगों को भी लाभ हो इससे और वो जो हम उसको देना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट हो पाए। तो चलिए आज का जो सेशन है, वैसे इससे पहले मैंने 5 लेक्चर लिया है वोकैबुलरी सीरीज का, जिसमें कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़ाए हैं आप लोग को। तो मैंने सोचा कि 5 लेक्चर के बाद एक लेक्चर लेते हैं फ्रेज का, तो इधर से ये जो 25,100 का जो टारगेट है उसमें उधर से भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो 5 लेक्चर लेंगे हम वोकैब का और उसके बाद एक लेक्चर लेंगे फ्रेज का। तो आज का जो लेक्चर है वो हम फ्रेज का लेकर आए हैं। सो लेट अस लर्न सम इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। तो आज का जो फर्स्ट फ्रेज है वो है थ्रू थिक एंड थीन। Through thick and thin, if you refer, if you see through thick and thin, thick means मोटा और पतला होता है, literally. But if you see it, a bit broadly, the phrase through thick and thin refers to through good or bad times. In Hindi you can say सुख और दुख में। तो अगर आप किसी के साथ सुख और दुख दोनों में उसका साथ देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि I will stand by you, stand by you through thick and thin. I hope you got thick and thin. Next phrase of the day is in apple pie order. Next phrase is in apple pie order. Order simply means a crumb, an arrangement. इन एप्पल पाई ऑर्डर आप लोग मार्केट में देखे होंगे कहीं ना कहीं कि जो जहां पे सेब बिकता है, जहां पे फल फूल बिकता है, वहां पे सेब का अरेंजमेंट कुछ ऐसे रहता है जो कि देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट आप लोग मार्केट में देखे होंगे जहां पे सेब रखा रहता है, वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये जो फ्रेज है ये इसी तरह के एक सेंस से डेराइव हुआ है। तो एप्पल पाई ऑर्डर करने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को एक बढ़िया अरेंजमेंट में रखते हैं। हाउ विल यू यूज इट? यू कैन यूज इट, यू कैन से दैट माय मदर पुट एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर in home. I hope you got, and the next example you can say that I put all the utensils in apple pie order in my home. I hope you got the meaning of apple pie order. Next, idioms is apple of discord. Here if you see the meaning of discord, it means in Hindi मतभेद और disagreement. और किसके लिए? तो एप्पल के लिए. So if you see here apple broadly, apple refers to the root cause of any problem. किसी भी झगड़े का जो जड़ है उसको यहाँ पे ये एप्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल मतभेद का जो कारण है वो क्या है? एक एप्पल है. So here the phrase an apple of discord refers to the root cause of a problem or a disagreement or a controversy, you can say. An equivalent meaning of this phrase is a bone of contention. Bone of contention and an apple of discord, both meaning is similar. How will you use it? You can say that Kashmir is an apple of discord or a bone of contention between India and Pakistan. I hope you got the meaning of an apple of discord and a bone of contention.
Next idioms of the day is blessing in disguise and devil in disguise. And one equivalent phrase, idioms, is a snake in the grass. You see these three idioms. Firstly, the blessing in disguise. Blessing means, I hope you know, it means Ashirvad. And disguise means something, negative. So, blessing in disguise, you can say, in Hindi, you can say, Chupa hua Ashirvad. How will you use it? For example, when in childhood, जब टीचर जब डांटते हैं हमको, घर से पिटाई लगती है, पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो उस टाइम में हम लोग को बहुत बुरा फील होता है कि ये सब हम करके क्या करेंगे. बट that paves the way for your bright future. So that time, that appeared to you as a disguise, but in future that be proved as a blessing. So I hope you got the meaning of blessing in disguise. Similar like devil in disguise. Devil means, a negative power, you can say, and disguise similarly means something negative. So devil in disguise, someone who appears to be good, जो आपके सामने में अच्छा रहता है, बट आपके पीछे में जाके आपका क्रिटिसाइज करता है, तो उसको आप बोल सकते हैं क्या, कि वो एक devil in disguise है. और इसी का इक्विवेलेंट है, बट थोड़ा हार्ड है इससे, सब जो कि है a snake in the grass. इसका मतलब होता है कि आस्तीन का सांप. कहने का मतलब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं उसके बारे में, और फिर वो फ्रेंड आप ही को उससे साइड करके और वही करने लगता है वो काम, और आप ही को उससे साइड कर दिया. सो दैट टाइप ऑफ फ्रेंड यू कैन से was or is a snake in the grass. So I hope you got the meaning of blessing in disguise, devil in disguise, and a snake in the grass. Next and last idioms of the day is put the cart before the horse. Put the cart before the horse. आप लोगों ने टमटम देखा होगा, तो टमटम का जो वो वुडन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कार्ट, और हॉर्स का तो मतलब पता होगा कि घोड़ा होता है. तो अब आप बताइए कि टमटम जब चलता है, मेरी पेंटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग मान लीजिए कि थोड़ा बहुत हम भी बना लेते हैं. तो ये देखिए, यह कार्ट, wooden part is cart and this is horse. So अब अगर हम ये कर दे कि कार्ट को उठा के आगे या इसको उठा के पीछे कर दे तो क्या होगा, चल पाएगा घोड़ा? नहीं चल पाएगा. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स करते हैं, तो कहने का मतलब है किसी भी काम को आप क्या करते हैं, एकदम अटपटा ढंग से, उल्टा पुल्टा ढंग से कर रहे हैं. जिसका मूड़ी होना चाहिए उधर, तो उधर आप क्या कर दे रहे हैं, टर्न कर दे रहे हैं. तो किसी भी काम को अगर आप डायरेक्ट रिवर्स वे में करते हैं और अपोजिट वे में करने लगते हैं, तो दैट मीन्स यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. और चलते चलते एक प्रोवर्ब देखते हैं. और आज का जो प्रोवर्ब है वो है, do not judge a book by its
कवर। तो इसको देखिए, कवर का मतलब तो जानते ही होंगे, खोल होता है एक तरह से, यानी तो बुक का जो आगे का जिल्द होता है। तो कहने का मतलब है आप किसी भी बुक को उसके कवर के आधार पे जज ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि वो बुक का कुछ ही चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए प्रोडक्टिव हो और कुछ सीखने योग्य हो, और बाकी चैप्टर आपके हो बस उलझाने के लिए और बोरिंग टाइप का हो। तो और आप तो जज कर लिए वो बुक को किससे, उसके कवर से। तो इसीलिए कहा गया है, और डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है तो एक कबीर का कॉपलेट है, there is a couplet of Kabir, and Kabir says in that couplet that I quote that जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। हियर म्यान जो है वो क्या है, उसका खोल है। अब अगर म्यान को कोई बढ़िया बना दे, उस पे क्या लगा दे, कुछ सजावट का सामान सब जो होता है, तारा तारा चांदी का कर दे, उस पे नक्काशी कर दे म्यान पे, तो आप उस बस म्यान को देख के वो किन लिए, और अंदर में है एक भोथर तलवार जिससे कि कुछ नहीं कटेगा, तो वो तलवार का कोई मायने नहीं रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक बुक को या ब्रॉडली किसी भी चीज को उसके आउटर अपीयरेंस से जज ना करें। तो कहने का मतलब है यही कि डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। So that's all for today. Next day we will learn some more words. Thank you and bye bye.